ના ચોથા શનિવારની શ્રેણીમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. મને ગમતું પુસ્તક વાર્તાલાપ. આજે આપણી વચ્ચે ડૉક્ટર અમૃતભાઈ પટેલ ઉપસ્થિત છે. ખૂબ આઈ થિંક 95માં આ શરૂ થયેલું અને ત્યારના શરૂઆતના વર્ષોમાં એવો વાર્તાલાપ આપી ગયેલા. મહાદેવભાઈ હતા ત્યારે એમની સાથે ત્યારનો પણ સંબંધ અને મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી સ્નેહ, સ્પર્શ અને સારવાર આ પુસ્તક હતું અને ખૂબ જ, અને કદાચ વાર્તાલાપ નીચે ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર થયો હતો, એટલે સાહેબ બીજી વાર પધારી રહ્યા છે. વચ્ચે ફેમિલી મેમ્બર પણ આવી ગયા, દીકરી પણ આવી ગઈ સરસ યુવા વાર્તાલાપમાં, તેજસ્વીની, હે ને, અને ખરેખર જ નામ પ્રમાણે ગુણ એવી દીકરી અને ભાવનાબેન, ને પેલું નામ નથી બોલતી, એ આપણા વચ્ચેનું છે. એ અમે ઓએસએસમાં સાથે એમએચએસ સિરીઝ કરી છે, એટલે અમે બધા જનકભાઈ સાહેબ કે અમે બધા સહાધ્યાયીઓ છે, એ રીતની માનવ જીવન જીવવાના સહાધ્યાયી છું, એવી રીતનું છે. અને એકચ્યુઅલી હું પરિચય આપું છું, આમ ઝડપ કરી લઈશ કારણ કે એમને મારે સમય આપવો છે. પુસ્તક પણ સુંદર છે એકદમ. પણ ગયા મહિને એમને મેં આમંત્રણ આપેલું અને ગયા મહિને એમણે મને ના પાડી. તે ના પાડવાનું કારણ બહુ સરસ છે. હું રિટાયર્ડ થયો ને, આ ગવર્મેન્ટ સર્જન છે એવો, અને રિટાયર્ડ થયો ને પછી મેં MBA કરવાનું નક્કી કર્યું અને મારી MBAની એક્ઝામ છે. એટલે સિમ્બાયોસિસમાંથી હોસ્પિટલ મેનેજમેન્ટ ને હેલ્થ કેરમાં એમણે MBA કર્યું અત્યારે રિસન્ટલી. એટલે આ એક વિદ્યાર્થીનું હું સ્વાગત કરું છું, સયાજીભાઈ બહુ આજીવન વિદ્યાર્થીનું. અને એમના પરિચયની વાત તો મેં થોડી તો કાર્ડમાં આપણે લખી જ છે કે MS થયા છે. MS યુનિવર્સિટીમાંથી 1988માંથી એમણે જનરલ સર્જરીમાંથી એમણે કર્યું હતું MS, અને જનરલ સર્જન અને મેડિકલ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ તરીકે ક્લાસ 1 ઓફિસર તરીકે હેલ્થ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાતમાં 35 વર્ષ સુધી એઓ એ કામ કરીને હમણાં 2022માં જ એઓ નિવૃત્ત થયા છે. પણ નિવૃત્ત થઈને ખાસી એવી પ્રવૃત્તિ ચાલુ છે પોતાના ક્ષેત્રની પણ અને અન્ય પણ. અને અત્યારે ઓમ સાઈરામ કાર્ડિયાક એન્ડ મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ બારડોલીમાં એઝ અ મેડિકલ ડિરેક્ટર એઓ કામ કરી રહ્યા છે. અને ખાસા સર્વિસ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જેવા કે રોટરી, જુનિયર ચેમ્બર ઇન્ટરનેશનલ સાથે એઓની સર્વિસ મળતી જ રહી છે સમાજને. અને રોટરી ક્લબ ઓફ બારડોલીના એઓ ભૂતપૂર્વ પ્રેસિડન્ટ પણ છે. ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન બારડોલી બ્રાન્ચના પણ એઓ પ્રમુખ રહી ચૂક્યા છે. અને JCI ઇન્ડિયાના એવો નેશનલ ટ્રેનર તરીકે પણ એઓ કામ કરી રહ્યા છે અને કરી ચૂક્યા છે. અને મેં કહ્યું તેમ પોસ્ટ રિટાયરમેન્ટમાં હેલ્થ કેર અને હોસ્પિટલ મેનેજમેન્ટમાં સિમ્બાયોસિસમાંથી એમણે MBA કર્યું. અને બુક લવર તો ખરા જ. તો લાઇબ્રેરી કેટલા બુકની હશો આપણે કલ્પના કરી શકીએ. 6500 બુક એમના ઘરે છે. એટલે આ જગ્યાએ ખૂબ આનંદ અને ગર્વ થાય એટલી બધી 6500 બુક્સ એમના કલેક્શનમાં છે. અને સોસાયટી માટે કંઈ પણ કામ કરવું હોય જેમાં પોઝિટિવ, નીચે વાતો થઈ છે. આજે અમારી વચ્ચે KR શ્રોફ ફાઉન્ડેશનના ઉદયભાઈ દેસાઈ કે જેઓ આ જ કાર્ય કરી રહ્યા છે, આપણા નવસારીના જ ઉષાબેનના સનને રમેશભાઈ, આઈ થિંક રમેશભાઈ અને ઉષાબેનના સન એઓ આવ્યા હતા. દક્ષિણામૂર્તિ ગીજુભાઈ બધેકાની જે સંસ્થા છે એમના પણ ટ્રસ્ટી શ્રી પંકજભાઈ ઉપસ્થિત હતા. એટલે એમની સાથે બી એઓએ વાત કરી તો આપણને ખ્યાલ આવ્યો કે કેટલી બધી સેવાકીય યુવાનો માટે એઓ કાર્ય કરી રહ્યા છે. અને પોઝિટિવ એટલે મોટિવેશનલ ટ્રેનિંગ સ્કૂલ અને કોલેજીસના બાળકોને એઓ સતત આપી રહ્યા છે. આ બધું સેવાકીય પ્રવૃત્તિ ખરી, પણ ખૂબ મોટા કુટુંબ પ્રેમી છે એવું મારે કહેવું જોવું. કારણ કે મેં છે ને એમના સોશિયલ મીડિયા પર બહુ બધું જોયું, તે બહુ વાર ખાવાનું બનાવતા દેખાય. એ શોખીન છું કે તમને ખાવાનો ખૂબ શોખ છે. નીચે એમણે ચાનું કપ એક ટીપું પણ નથી પીધું અને આપણા નવસારીની પેટીસ પણ નથી ચાખી. એટલે મેં કીધું કે તમે ખાવાના આટલા બધા શોખીન છો. કીધું બેન ખાવાના નથી, ખવડાવવાનો શોખીન છું. એટલે ખવડાવવાના એવો શોખીન છે. અને એક એમનો એટલે શું ખવડાવવાનું, તો બધા કુટુંબીજનોને ભેગા કરીને આ બધાની સહાય લઈને એવો અવનવી વાનગી બનાવે છે. તમે જોતા રહેજો એમના સોશિયલ મીડિયા પર, તમને થશે કે ઓહો રગડા પેટીસ બનાવી, ઓહો આ શીરો બનાવ્યો, ઓહો આ બનાવ્યું. એવું ઘણું એમને આવડી રહ્યું છે. એટલે એવું નથી કે માત્ર જનરલ સર્જરી જ વાંચવું. આટલા મોટા રીડર તો છે જ, આટલા બધા પુસ્તકો છે. એટલે તો આવો અમૃતભાઈ,
આપનું સ્વાગત છે. અમે આમ જનરલી પહેલેથી બોલાવી લઈએ, પણ આજે હું તમને આ રીતે વેલકમ કરું છું. અને આપણી વચ્ચે આપણા નવસારીના ખૂબ જાણીતા જનરલ સર્જન ઉપસ્થિત છે. જનકભાઈ સાહેબ આવો, અને આપ લાઇબ્રેરી વતી એમને આ પુસ્તક અર્પણ કરો. અને સુંદર પુસ્તક લઈને એવો આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. આવો આપ. આગળ હું કહ્યું હતું ત્યારે બી બહુ સુંદર પેલો બિલીફ ઓફ બાયોલોજી, એટલે એવા સુંદર સુંદર પુસ્તકો એમણે વાંચ્યા છે. પણ આપણે ત્યાં ભૂતકાળમાં જસ્ટ રિસન્ટ ભૂતકાળમાં એના વિશે ચર્ચા થઈ. કીધું આપ તો બહુ વાંચો છો, બીજું પુસ્તક લો તો મસ્ત દલાઈ લામાનું પુસ્તક લઈને કદાચ પહેલી વાર જેવા લિસ્ટમાં હું જોઈ રહી છું. તો આવો સાહેબ, અને આપની વાતો અહીંયા વહેંચો. નજીક રાખો છો. નમસ્કાર. મેં આપ સૌને કહ્યું નમસ્કાર. કેમ છો બધા? ચોક્કસ મજામાં છો? શનિવારની સાંજ અને મને ગમતું એક પુસ્તક. સયાજી વૈભવ પુસ્તકાલય સાથેનો મારો નાતો, કીર્તિદાબેને કહ્યું તે પ્રમાણે મહાદેવભાઈ દેસાઈ સાથે શરૂઆતમાં જ્યારે આ મને ગમતું પુસ્તક વાર્તાલાપ શરૂ થયો ત્યારે મને ચોક્કસ યાદ છે કે હું લગભગ 12મો વક્તા હતો. શરૂઆત પછીનો 12th વક્તા તરીકે હું અહીંયા આવ્યો હતો. અને નીચે અમે મળ્યા હતા. વરસાદના દિવસો હતા. સ્નેહ, સારવાર અને ચમત્કાર, લવ, મેડિસિન એન્ડ મિરેકલનો મારું પોતાનો અનુવાદ, એના ઉપર મેં રજૂઆત કરી હતી. અને મને સ્વર્ગસ્થ મહાદેવભાઈને યાદ કરતાં એ ચોક્કસ મારા સ્મરણમાં આવે છે કે મહાદેવભાઈ સમયના એકદમ પાબંદ હતા અને એમણે 1 કલાકથી વધારે 1 મિનિટ પણ નહીં આપવાની એવું અગાઉના વક્તાઓ સાથે સ્ટ્રિક્ટલી એ ફોલો કર્યું હતું. પણ સમહાવ મહાદેવભાઈની એ ઉદારતાએ મને 1 કલાકને 20 મિનિટ આપી હતી. 1 કલાકને 20 મિનિટ. એમને નમન સાથે પુસ્તકાલયના પદાધિકારીઓ, આદરણીય શ્રોતાગણ, મારા ટીચર પ્રોફેસર ડૉક્ટર જનકભાઈ પારેખ સર, કીર્તિદાબેન, માધવીબેન, પ્રશાંતભાઈ અને આપ સૌ. કીર્તિદાબેને કહ્યું તે પ્રમાણે હું સર્જન છું, વાચક છું. રસોઈ થોડી શોખ માટે કરું છું. ઓફકોર્સ એમાં દીકરી અને વાઈફની ચોક્કસ મારે મદદ લેવી પડે છે. હું જાતે એ બધું કરી શકતો નથી. પણ મુખ્ય કામો એ કરવાની મને ખૂબ મજા આવે છે. ઇટ્સ અ વેરી નાઇસ સ્ટ્રેસ બસ્ટર. આજે આપણે જે પુસ્તક વિશે, પુસ્તક આપની વચ્ચે હું લઈને આવ્યો છું, એ પુસ્તકનું નામ છે આનંદ કા સરળ માર્ગ. આપ સૌએ આમંત્રણ પત્રિકામાં એ વાંચ્યું જ હશે. એવું સુંદર જબરજસ્ત પુસ્તક છે. ખૂબ સરળ પુસ્તક છે, પરંતુ ગહન પણ છે. સરળ એ રીતે કે આપણને બધાને સમજ પડે કે હા, મારે જોઈએ છે તો આજ, પરંતુ એ મેળવવાની જે પદ્ધતિઓ છે, એની ટૂલ્સ એન્ડ ટેકનિક્સ છે, એને વિશે આપણે બહુ ચોક્કસ નથી હોતા. પરમ પાવન દલાઈ લામા અને અમેરિકાના મશહૂર મનોવૈજ્ઞાનિક, સાયકેટ્રિસ્ટ, મનોચિકિત્સક ડૉક્ટર હોવર્ડ કટલર, એમની વચ્ચે લગભગ 10 વર્ષ સુધી સંવાદ ચાલ્યો. અને એ 10 વર્ષના સંવાદને અંતે પશ્ચિમનું મનોવિજ્ઞાન અને પૂર્વનો બૌદ્ધ ધર્મના સિદ્ધાંતો, એ બેના સમન્વયથી માણસ ખુશ કેવી રીતે રહી શકે, માણસને ખરેખર તલાશ શેની છે અને એ તલાશ એની ક્યારે પૂરી થઈ શકે, એના ઉપર એમના જે વિચારો છે, વિચારોને
એમણે જબરજસ્ત રીતે આ પુસ્તકની અંદર પ્રતિબિંબિત કર્યા છે. પુસ્તક હિન્દીમાં છે, પરંતુ હું મારી રજૂઆત હિન્દી, ગુજરાતી અને અંગ્રેજી ત્રણ ભાષાઓમાં કરીશ. જ્યાં જ્યાં મને જે કમ્ફર્ટેબલ હશે એ લેંગ્વેજમાં હું બોલીશ. મંજુલ પબ્લિકેશન એણે આ પુસ્તકને પબ્લિશ કર્યું છે અને દલાઈ લામા અને કટલર સાહેબના અંગ્રેજી પુસ્તક ધ આર્ટ ઓફ હેપીનેસ, આ આર્ટ ઓફ હેપીનેસ પુસ્તકનું હિન્દીમાં અનુવાદ કર્યો છે શ્રી આશુતોષ ગર્ગે. આશુતોષ ગર્ગ એ ખૂબ જાણીતા અનુવાદક છે અને એમણે આ પુસ્તકનું અનુવાદ કર્યો છે. મિત્રો, આ પ્રતિષ્ઠિત પુસ્તકાલયમાં મને જે તક આપી, પદાધિકારીઓએ મને જે આ પુસ્તક વિશે શેર કરવા માટે તક આપી, એ બદલ હું એમનો હૃદયપૂર્વક ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને આઈ કન્સિડર માય સેલ્ફ લકી ફોર ગિવિંગ ધીસ ઓપોર્ચ્યુનિટી દેટ આઈ હેવ બીન ઓફર્ડ ઓર ઇન્વાઇટેડ ફોર ધીસ ટોક. મિત્રો, પુસ્તકાલય એ કોઈ માત્ર પુસ્તકો સંગ્રહનું સ્થાન નથી. પુસ્તકાલયમાં કેટલાય વિદ્વાનોના અનુભવોનો સંગ્રહ થયેલો છે, એમના વિચારોનો સંગ્રહ થયેલો છે, એમના એવા વિચારો કે જે માણસને જીવન જીવવામાં મદદરૂપ થઈ શકે. આજના દિવસે પુસ્તકની શરૂઆત કરું તે પહેલાં, પુસ્તક વિશે ચર્ચા કરું તે પહેલાં હું આપ સૌને એક પ્રશ્ન પૂછું કે શું ખરેખર જીવનમાં તમે ખુશ રહેવા માંગો છો? કેટલા લોકો ખુશ રહેવા માંગે છે? પ્લીઝ રેઝ યોર ફિંગર. Obviously, everyone would be searching for happiness. મારે સુખ જોઈએ છે, મારે ખુશી જોઈએ છે, મારે આનંદ જોઈએ છે. આઈ વોન્ટ ટુ બી હેપી. મિત્રો, કેટલાક લોકો સુખની વ્યાખ્યામાં મને સ્વાસ્થ્ય જોઈએ છે, મને પૈસા જોઈએ છે, મને ગાડી જોઈએ છે, મને પદ જોઈએ છે, મને પ્રતિષ્ઠા જોઈએ છે, મને સન્માન જોઈએ છે. જો મને આ મળે તો હું ખુશ થાઉં, જો મને આ મળે તો હું સુખી થાઉં. મિત્રો, પણ ખરેખર આપણે આપણી જાતને એક પ્રશ્ન પૂછીએ કે શું હું ખરેખર ખુશ છું? અને ખુશ છું તો કેટલો છું? શું હું હર પલ ખુશ રહી શકું છું? હું દરેક પરિસ્થિતિમાં, મને જ્યારે દુઃખ મળે, જ્યારે મને પીડા મળે, જ્યારે મને યાતના મળે, જ્યારે હું અસફળ થાઉં, આ દરેક જગ્યાએ પણ હું મારી ખુશીને અકબંધ રાખી શકું છું ખરો? અને ચોક્કસ જ કેટલા લોકો એમ કહી શકે કે આઈ એમ ઓલવેઝ હેપી? પ્લીઝ રેઝ યોર ફિંગર, રેઝ યોર હેન્ડ. ઇટ્સ ગુડ, વી મસ્ટ ક્લેપ ફોર હિમ ધેટ એવરી મોમેન્ટ ખુશ આપણે રહેવું જોઈએ. અને આપણે બધા ખુશ રહેવા માટે જ લગભગ બધું કરીએ છીએ. સારા કપડાં પહેરીએ, આપણને ખુશી થાય. સારું ઘર બનાવીએ, આપણને ખુશી થાય. સારું શિક્ષણ મેળવીએ, આપણને ખુશી થાય. સારી નોકરી મળે, આપણને ખુશી થાય. આપણું પ્રમોશન આવે, આપણને ખુશી થાય. યંગસ્ટરને સારું જીવનસાથી મળે, ખુશ થાય. તો મિત્રો, આ ખુશી અને એની સાથે જોડાયેલા કેટલાક પ્રશ્નોના ઉત્તર કે ખરેખર આપણને જે જોઈએ છે એ સાચી ખુશી, રિયલ હેપીનેસ છે શું, એના ઉપર ડૉક્ટર કટલર અને દલાઈ લામાએ આપણા વિચારોને સંયોજન કરીને આ આનંદ કા સરળ માર્ગ તૈયાર કર્યું છે. પુસ્તક 5 વિભાગમાં વહેંચાયેલું છે. પહેલો વિભાગ છે જીવન કા લક્ષ્ય યાની જીવન કા ઉદ્દેશ. બીજો વિભાગ છે આત્મીયતા અને કરુણા. ત્રીજો વિભાગ છે કષ્ટ કા રૂપાંતરણ, ટ્રાન્સફોર્મેશન ઓફ પેઇન એન્ડ સફરિંગ. બાધાઓ પર વિજય, ઓબ્સ્ટ્રક્શન ઓર ઓબ્સ્ટિકલ્સ ઇન અવર લાઈફ, હાઉ ટુ ઓવરકમ. અને આધ્યાત્મિક જીવન ઉપર ચિંતન. આ 5 વિભાગોમાં વહેંચાયેલા પુસ્તકમાં દલાઈ લામાજીએ કેટલીક જે ચર્ચાઓ કરી છે, દરેક ચર્ચાઓને વેસ્ટર્ન વર્લ્ડના તમામ વૈજ્ઞાનિકો હવે સપોર્ટ કરી રહ્યા છે. એટલા બધા સાયન્ટિફિક રિસર્ચ થયા છે કે હેપી, ખુશ, આનંદમય રહેવાના ફાયદાઓ શું શું છે. અનેક ફાયદાઓ છે. અને પુસ્તકની અંદર કેટલાક એવા સવાલો ઉપર ચર્ચા થઈ છે कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन में दुख क्यों आता है, और दुख अगर आता है तो हम उसे कैसे दूर कर सकते हैं. कष्ट होते हुए भी, पीड़ा होते हुए भी
हम अपने आप को क्या खुश महसूस कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? अगर हां तो कैसे? आप कहते हैं कि मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं, तो मन को प्रशिक्षित कैसे कर सकते हैं? करुणा कैसे विकसित कर सकते हैं? हमारे मस्तिष्क को कैसे हम ट्रेन कर सकते हैं? ये सब सवालों का जवाब दलाई लामा जी ने अपनी जो बौद्ध सिद्धांतों है, अपने जो बौद्ध सिद्धांतों है, उसका संदर्भ लेके हमें समझाने का कोशिश किया है। दलाई लामा कहते हैं कि ह्यूमन माइंड कैन बी ट्रेन्ड फॉर रिमेनिंग हैप्पी एवरी मोमेंट। इट इज नॉट नेसेसरी दैट we would be happy only when we get something from the outside. We get something as a validation from the society, from the community. But we can be happy every moment if we follow certain norms, if we follow certain mental practices, if we go through certain process, tools and techniques, how to use it. इसके लिए अगर हम जो जान सकते हैं तो हम पल पल सुखी और सुख महसूस कर सकते हैं। और दलाई लामा का संदेश ये बेस्ट सेलर इसीलिए हुआ कि दलाई लामा कहते हैं कि खुशी पाना संभव है। खुशी पाना संभव है और खुशी एक कला है। खुशी पाना एक कला है और दूसरी कलाओं की तरह हम ये कला भी सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं? माइंड ट्रेनिंग से। वो माइंड ट्रेनिंग क्या है? खुशी की कुंजी बाहर नहीं, हमारे भीतर है, हमारे खुद के हाथ में है। बाहरी परिबलों, ऑल आउटर साइड फैक्टर्स शुड नॉट अफेक्ट आवर एटर्नल हैप्पीनेस। हमारे भीतर जो खुशी है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। और खुशी प्राप्त करने के लिए हमें भाग्य पे भरोसा नहीं रखना है और हमें खुशी के लिए कोई डेट नहीं डालनी है और हमें उसके लिए प्रतीक्षा नहीं करनी है। खुशी पाने के लिए सिर्फ अगर ज़रूरत है तो हम अपने आप को प्रशिक्षित करें, हम अपने आप को ट्रेन करें, एजुकेट करें कि हम पल पल खुश कैसे रह सकें। 1999 में हैप्पीनेस और पॉजिटिव इमोशंस, उसके पहले साइंस में कोई बात नहीं होती थी। इतिहास और ये बुक के जो साइकेट्रिस्ट है वो कहते हैं कि अप टू 1990 तक साइंटिस्ट को खुशी का हेल्थ से रिलेशन क्या है, मैं वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, मैं हमारी चरक संहिता और सुश्रुत की बात नहीं कर रहा, मैं अपने पतंजलि योग सूत्र का बात नहीं कर रहा, मगर वेस्टर्न वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट थे वो साइंटिस्ट खुशी और हमारी सेहत, खुशी और हमारा मेंटल वेलबींग, खुशी और हमारा परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी, उसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं थे। मगर दलाई लामा जी, परम पावन दलाई लामा और डॉक्टर कटलर के ये संवाद की जो पुस्तिका बाहर आई और वो जब बेस्ट सेलर हुई, उसके बाद हर यूनिवर्सिटी में, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में हैप्पीनेस का कोर्स सिलेबस में आया। हैप्पीनेस की एक डिग्री आई। कॉलेज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी पॉजिटिव साइकोलॉजी, हाउ इट अफेक्ट्स द माइंड, हाउ इट अफेक्ट्स आवर हेल्थ, हाउ इट अफेक्ट्स आवर इमोशंस, उसके बारे में भी बहुत संशोधन होने लगे। भूटान जैसे देश में देश की सफलता का जो मापदंड है, जो पैरामीटर है, वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की जगह GHP, ग्रॉस हैप्पीनेस प्रोडक्टिविटी, GNP, अगर देश कितना सफल है वो जानना है तो हमें ये जानना होगा कि हमारे देश के जो लोग हैं वो कितना सुखी महसूस कर रहे हैं। और वैज्ञानिक संशोधन ऐसा कहते हैं कि खुशी के जो फायदे हैं, द बेनिफिट्स ऑफ हैप्पीनेस आर प्लेंटी। गहन वैज्ञानिक संशोधनों ने यह साबित किया है खुश रहने से हमें क्या लाभ होते हैं। लाभ बहुत हैं, जैसे कि बेटर हेल्थ, बेटर इम्यून सिस्टम, बेटर रिलेशनशिप,
बेटर इमोशनल बैलेंस, बेटर लॉन्जिविटी। जो लोग खुश रहते हैं वो ज़्यादा जीते हैं, और साइंस तो ऐसा कहता है कि खुश रहने वाले लोग जो खुश नहीं रहते हैं उससे कम 10 साल ज़्यादा जीते हैं। दिस इज समथिंग वेरी वेरी बिग एंड इट हैज़ गॉट अ साइंटिफिक सपोर्ट। इट इज़ नॉट जस्ट अ फेथ, इट इज़ नॉट जस्ट अ समथिंग ट्रस्ट इन द रिलीजियस बुक्स। दिस साइंस इज टेलिंग दैट खुश रहने वाले लोग खुश नहीं रहने वालों के लोगों की कंपैरिजन में 10 साल ज़्यादा जीते हैं। उसका परफॉर्मेंस एट वर्क प्लेस बेटर होता है, उसका वो अच्छे टीम प्लेयर होते हैं। खुश लोग चिड़चिड़े नहीं होते, अपनी टीम के साथ प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनते, वो बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। खुश रहने वाले लोग ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, उनके दिमाग में इनोवेशंस आते हैं, उनके दिमाग में ऐसी बातें आती हैं जो समाज के लिए बहुत अच्छी होती है और समाज को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट करती है। और खुश रहने वाले लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, वो जड़ नहीं होते, वो अपनी किसी एक चीज़ पे अड़ नहीं जाते, वो सोचने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला आदमी क्या कह रहा है, सामने वाला व्यक्ति जो कह रहा है उसके अलग अलग पहलू क्या है, व्हाट आर दी डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ द थिंग्स विच दिस पर्सन इज टॉकिंग अबाउट। सो फ्रेंड्स, इतने सारे अगर बेनिफिट्स हैं तो हम सबको खुश रहने के लिए प्रयास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस और नो? करना ही चाहिए, क्योंकि खुशी के इतने सारे, अगर परिवार की या राष्ट्र के प्रति हमें स्नेह है, अगर समाज के प्रति हमें रिस्पेक्ट है और हम समाज का कल्याण चाहते हैं, तो हम सबको खुश रहना चाहिए और हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे हमें खुशी मिले, समाज को खुशी मिले और हमारे राष्ट्र के सब लोग भी खुश रहें। फ्रेंड्स, दिस फिलोसॉफी इज बेस्ड ऑन फ्यू प्रिंसिपल्स, और वो प्रिंसिपल है, दलाई लामा जी कहते हैं कि देयर आर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। नंबर 1 इज वी ऑल आर ह्यूमन, हम सब मानव हैं। दूसरा, वी ऑल आर इक्वल, सब मानव एक जैसे हैं और समान हैं। वी ऑल हैव अ सिमिलर ह्यूमन बॉडी एंड ह्यूमन माइंड। ह्यूमन बॉडी एंड माइंड सबके पास एक जैसे है, वो पढ़े लिखे हैं, गरीब हैं, पैसे वाले हैं, अनपढ़ है, कोई भी हो सकता है, हिंदू है, मुस्लिम है, अमेरिकन है, इंडियन है, सब लोगों के पास ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन माइंड जो है वो सेम है। एंड वी हैव गॉट सिमिलर इमोशंस। दुख होता है तो गरीब भी रोता है, पैसे वाले धनवान भी रोते हैं। दुख होता है, पीड़ा होती है, तो ऑल वी एक्सपीरियंस दिस सेम इमोशंस, हम सब की एक जैसी फीलिंग्स है। दलाई लामा मानते हैं कि सभी मनुष्य मूल रूप से अच्छे होते हैं, सभी मनुष्य मूल रूप से अच्छे होते हैं। वैसे हम मानते हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है, वो लोभी है, वो लालची है, वो गंदा है, मगर मूलभूत रूप से अगर हम सोचें तो सब लोग एक जैसे हैं और वो सब अच्छे हैं। एट द कोर ऑफ द ह्यूमन हार्ट एवरीवन इज गुड बाय हार्ट। और करुणा सबके लिए एक जैसी होती है। करुणा का जो इम्पैक्ट है वो सबके ऊपर एक जैसे होते हैं। और सब सजीव प्राणी, नॉट नेसेसरीली द ह्यूमन बीइंग बट सब सजीव प्राणी एक जैसे हैं। फ्रेंड्स, हमारे जीवन का मकसद क्या है? हम क्या पाना चाहते हैं? हम क्या करना चाहते हैं? हम क्यों आए हैं इस धरती पर? आप में से कोई मुझे बता सकते हैं? आप क्यों आए हैं? आप खुश रहते हैं हर वक्त, तो क्यों आपका पर्पस क्या है? उद्देश्य क्या है? लक्ष्य क्या है? खुशी पाना। क्लैप फॉर हिम। यस, हम सबका कुछ भी करें, हमें खुश रहना है। हम तलाश जो रहे हैं कहीं भी,
तो हमें खुशी चाहिए। मैं यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं खुश रहना चाहता हूँ। मैं एक ऐसा आपके साथ मेरा पुस्तक परिचय शेयर करूँ कि मुझे खुद को खुशी मिले इस बात की कि मैंने मेरे पास जो कुछ था उसे सबके साथ शेयर किया, और उससे शायद हो सकता है कि किसी की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, खुशी की तलाश में हम कभी कभी बहुत बड़ी भूल कर देते हैं। और वो भूल क्या है? भूल यह है कि जब मुझे यह मिलेगा, क्या जब मुझे यह मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा। मगर जब एक इच्छा पूरी हो जाती है तो तुरंत उसके बाद हमारी दूसरी इच्छा वहां आके खड़ी हो जाती है। हमारा एक लक्ष्य खत्म हो जाता है, उससे बड़ा लक्ष्य हमारे सामने आकर खड़ा रह जाता है। तो इसका क्या मतलब है? कि हमें लक्ष्य नहीं रखना चाहिए? क्या हमें सपने नहीं देखने चाहिए? ऑफ कोर्स वी मस्ट हैव ड्रीम्स, बिग गोल्स। मगर हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वो लक्ष्य पाने में हम हमारे जीवन की जो छोटी छोटी खुशियां हैं उसको भी एंजॉय करते चलें, उसको मिस नहीं कर दें। अगर हम वो मिस कर देते हैं तो वो दूसरी बार वो पल हमारे पास आने वाला नहीं है। और फ्रेंड्स, कंफर्ट और खुशी, सुविधा और सुख, सुविधा और आनंद, ये दोनों में जो फर्क है वो फर्क हम चूक जाते हैं। हमें अच्छा खाना मिलता है, हम खुश रहते हैं। अच्छे कपड़े मिलते हैं, हम खुश होते हैं। हम अच्छी गाड़ी लेते हैं, नई गाड़ी लेते हैं, हमें खुशी होती है। वो खुशी नहीं है। दैट इज एक सुविधा है, एक कंफर्ट है, एक सगवड़ है हमारे पास। और वो सगवड़ जो है, वो जो कंफर्ट है, वो टेम्पररी होती है। सच्ची खुशी या रियल हैप्पीनेस और कंफर्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो हम सबको याद रखना चाहिए। और डिफरेंस क्या है कीर्तिदा बेन? डिफरेंस ये है कि अगर वो सच्ची खुशी है तो वो आपके पास हर पल रहती है, एक बार आई फिर वो जाती नहीं है। अच्छा खाया भूल जाते हैं हम, गाड़ी नहीं आई हफ्ता भर उसका क्रेज रहता है, फिर हमारे लिए वो रूटीन हो जाता है। आज एक अवार्ड मिला, हम बहुत खुश होते हैं, फिर अवार्ड कहाँ पे अलमारी पे पड़ा रहता है हमें पता भी नहीं होता। हम सफल होते हैं, हम खुश होते हैं, मगर वो सफलता भी ज़्यादा टिक नहीं पाती क्योंकि वो परमानेंट नहीं है। तो सच्ची खुशी के लिए मेरे पास जो है उसके प्रति हमारा रवैया क्या है? मेरे पास जो है, अच्छा शरीर है, अच्छा फैमिली है, अच्छा नॉलेज है, तो उसके प्रति हमें जो कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, जो ग्रेटिट्यूड का भाव होना चाहिए, उसकी जगह पे मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो करना है। मगर हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि इसके साथ साथ मेरे जीवन में मैं जो पाना चाहता हूँ, इसके लिए एक उदाहरण दिया है इसमें बुक में। वो बुक में कहते हैं कि एक आदमी को HIV हो गया और दूसरे आदमी की कुछ बहुत बड़ी कंपनी थी, उसमें घाटा हो गया, लॉस में आ गया। अभी जो कंपनी लॉस में गई, उसका जो मालिक है वो चिल्लाता है, मैं बर्बाद हो गया, मैं खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं, मेरे साथ ही क्यों ऐसा, क्यों भगवान ने मेरे साथ क्यों ऐसा किया। ये एक दृष्टिकोण है, एक व्यू पॉइंट है। और जिसको HIV हुआ, उनको जब ये साइकेट्रिस्ट के दोनों पेशेंट थे, उनको पूछा, ये बोले हाँ मुझे HIV संक्रमण हुआ। बहुत, ये 1988 की बात है जब एड्स की इतनी सारी दवाइयाँ नहीं थी हमारे पास। जब एड्स होता था तो कोई आदमी, उनको लगता है कि हमारा पूरा लाइफ, माई लाइफ इज ओवर, नाउ इट इज ऑफ नो यूज टू लिव। मगर वो कहता है मुझे
HIV होने के बाद दुख तो हुआ, बहुत दुख हुआ, मगर फिर मैं संभल गया और मैंने ये सोचा कि अब मेरे पास वक्त कितना है और मैं इसका पल पल सही उपयोग कैसे करूं। तो मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने सोचना शुरू किया, मैंने मेडिटेशन सीखा और अभी तक मुझे एड्स के कोई ऐसे सिम्टम्स मुझ में दिखने नहीं आए। अब पहले मैं आलसी था, पहले आई वॉज नॉट डिसिप्लिन, मगर मुझे लगता है कि मुझे एड्स होने के बाद मैं ज़्यादा डिसिप्लिन हो गया हूँ। अभी मैं सुबह में जल्दी उठ जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, मेरे न्यूट्रिशन के बारे में ख्याल रखता हूँ। तो ये सब जो चीज़ें हैं, खुशी को देखने का नज़रिया और खुशी का स्रोत, खुशी आती कहाँ से, हैप्पीनेस आती कहाँ से, फ्रॉम वेयर इट कम्स। कहाँ से आती है खुशी? खुशी इज हियर, इट इज हमारा जो मेंटल स्टेट है, अवर एटीट्यूड, मेंटल एटीट्यूड, दैट इज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। और हर पल मिलने वाली खुशी जो है वो हमारी मनोदशा पे ही डिपेंड करती है। अधिकांश रूप से हमारी जो मनोदशा है, मनोदशा दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव मेंटल स्टेट और एक नेगेटिव मेंटल स्टेट। पॉजिटिव स्टेट कैसा होता है? जिसमें प्यार होता है, जिसमें स्नेह होता है, जिसमें किसी की कद्र होती है, किसी की देखभाल होती है, किसी के प्रति कंपैशन है, दया की भावना है, सेवा होती है। ये सब पॉजिटिव मेंटल स्टेट है। और ये पॉजिटिव मेंटल स्टेट पीड़ा के समय में भी हमें हमारे पास जो खुशी है उसको कहीं जाने नहीं देती। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू ऑल विथ मी? यस और नो? इज इट इंटरेस्टिंग? सो हम देखते हैं कि हम कंपैरिजन करते हैं, लोगों के साथ हमारी कंपैरिजन करते हैं और दुखी क्यों होते हैं कि उनके पास जो है उससे मेरे पास कम है। एक दलाई लामा जी खुद एक जोक जैसा कहते हैं कि हम कैसा तय करें, हम कैसे तय करें कि हम धनवान हैं या नहीं, हम पैसे वाले हैं या नहीं। माधवी बहन, मुझे कैसे पता चलेगा एज अ मेल कि मैं धनवान हूं? तो दलाई लामा जी कहते हैं कि अगर मेरी साली के हस्बैंड से मेरे पास $1000 ज्यादा है तो मैं धनवान हूं। ये हमारी डेफिनेशन है। वी जस्ट कंपेयर अवर सेल्फ। मगर कंपैरिजन से कुछ नहीं होता। अगर हमें कंपेयर करना है तो हमसे जो कम नसीब है, हमसे जो वीक है, हमसे जो पुअर है, उसके साथ अगर हम हमारी कंपैरिजन करेंगे तो हमें ज़्यादा खुशी महसूस होगी कि या अल्लाह, भगवान कितना ज़्यादा दिया है आपने मुझे, मैं कितना खुश हूँ, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। और समाज में हम देखते हैं कि लोगों के पास सब कुछ होता है, पैसे होते हैं, पद होता है, प्रतिष्ठा होती है, सब कुछ, किसी चीज़ की कमी नहीं है। फिर भी अगर हम देखेंगे तो वो फैमिलीज में, वो परिवार में झगड़े हैं, इंटरनल झगड़े हैं, ईर्ष्या है किसी की, ये सब चीज़ें। वहाँ एंजाइटी भी है, चिंता है, मैं कैसे इसको संभालूं, ऐसा हो गया तो क्या, ऐसी चिंता है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। और वहाँ तक कि वही परिवार जिनके पास सब कुछ है, उनके परिवार के सभ्य ड्रग्स के आदी हो जाते हैं, ड्रग्स के आदी हो जाते हैं। और कभी कभी वही परिवार में आत्महत्या का किस्सा भी हम सुनते हैं। तो क्या हम ऐसा माने कि पैसे खुशी नहीं देता? क्या हम ऐसा माने कि ये सब जो चीज़ें हैं उसकी हमें इच्छा नहीं करनी चाहिए?
नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें संतुलन रखना है, हमें एक बैलेंस रखना है कि मैं जो भी कुछ करूँगा उसमें मेरी जो तलाश है, वो तलाश को मैं इस तरह करूँगा कि प्रेम, करुणा और केयर उसको हमेशा मैं हमारे नज़र के समक्ष रखूँगा। एक शांत दिमाग इज़ अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। हमारे पास सब कुछ है मगर हमारा मन अस्वस्थ है तो हम हमारे पास जो है उसको एंजॉय नहीं कर सकते। वी कैन नॉट एंजॉय इवन दो वी हैव गॉट प्लेंटी एबंडेंस ऑफ सो मेनी फिजिकल थिंग्स। कुछ भी हो, अगर हमारा मन अस्वस्थ है तो मन की शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में भी आगे के चैप्टर्स में डॉक्टर कटलर और दलाई लामा जी बताते हैं। इसमें एक इंसिडेंस बताया गया है, वो जो रियल लाइफ इंसिडेंस है। क्रिस्टोफर रीव नाम के एक स्टार थे। उनका प्लेन का क्रैश हुआ और प्लेन क्रैश होने के बाद बिलो द नेक पूरा बॉडी पैरालाइज हो गया। पूरा बॉडी पैरालाइज होने के बाद भी जब वो हॉस्पिटल में थे और किसी ने उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि मैं खुशनसीब हूं कि मैं बच गया, और मैं खुशनसीब हूं कि मेरा दिमाग सेफ है, मैं बोल सकता हूं, मैं सोच सकता हूं। अब सोचिए कि एक ऐसा इंसान हु इज वेरी एक्टिव, हु इज अ सेलिब्रिटी, और उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज होने के बाद भी वो कहते हैं कि मैं खुशनसीब हूं, थैंक यू गॉड, आपने मुझे बचा लिया। मैं कॉन्फिडेंट हूं कि कुछ दिनों के बाद मैं बाहर आऊंगा, मैं फिल्म की स्टोरी लिखूंगा क्योंकि मेरा दिमाग अकबंद है, किसी से लिखवाऊंगा, मैं सोच सकता हूं, मेरी इमेजिनेशन है अभी। तो लाइफ को अगर हम ऐसे देखेंगे तो हैप्पीनेस हमसे दूर नहीं भागेगी। फ्रेंड्स, इंटरनल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस क्या है? इंटरनल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, दिस माइंड इज अ इनविजिबल थिंग। अगर कोई हमें पूछे कि माइंड कहाँ पे है, प्रशांत भाई, माइंड तो कहीं दिखता नहीं, ये तो ब्रेन है। तो इंटरनल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस के बारे में दलाई लामा जी बताते हैं कि हमारा जो लवफुल कनेक्शन है, आत्मीयता और स्नेह। दलाई लामा जी कहते हैं कि आप कितने भी पैसे वाले हो, आप कितने भी बड़े पद पे हो, आप कितने भी बड़े सम्मानित व्यक्ति हो, मगर अगर आपका लोगों के साथ, समाज के साथ, आपके अगल बगल के व्यक्तियों के साथ लवफुल कनेक्शन नहीं है, आप लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो आपको जो खुशी मिल रही है वो खुशी ज़्यादा टिकने वाली नहीं है। द मोमेंट यू वुड लूज योर पद, योर प्रतिष्ठा, योर पैसा, पीपल वुड स्टार्ट डिसरिस्पेक्टिंग यू। सो खुशी के लिए हमें आत्मीय संबंध बनाना चाहिए। हर वक्त हमें ये याद रखना चाहिए कि मैं जो भी करूँगा उसमें, उसके बेस में, उसके केंद्र बिंदु में स्नेह रहेगा, रिस्पेक्ट रहेगा, केयर रहेगी, करुणा और कंपेशन रहेगा। फ्रेंड्स, खुश रहने के लिए दलाई लामा जी कहते हैं कि मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना, इंग्लिश में अगर कहें तो हम माइंड ट्रेनिंग। अभी हम ये पूछेंगे कि माइंड ट्रेनिंग होती कैसे है। दलाई लामा जी के बौद्ध सिद्धांतों के आधारित बहुत मेडिटेशन से, विपासना के बारे में भी हम सब लोगों ने सुना है कि अगर हमें हमारे माइंड को ट्रेन करना है तो कुछ ऐसी टूल्स एंड टेक्निक्स है जिसका अभ्यास अगर हम करेंगे तो हम वो कर पाएंगे। माइंड ट्रेनिंग का फर्स्ट जो स्टेप है स्वाति बेन, दैट इज लर्निंग। प्रशांत भाई, माइंड ट्रेनिंग का फर्स्ट स्टेप क्या है? लर्निंग।
हम सोचेंगे क्या लर्न करना है, हमारे पास डिग्री है, हम तो इतना पढ़े हैं, अभी इतनी उम्र हो गई है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मगर हमें सीखना है व्हाट इज पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, व्हाट इज पॉजिटिव मेंटल स्टेट, पॉजिटिव इमोशंस क्या है, निगेटिव इमोशंस क्या है, और व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव इमोशंस, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ नेगेटिव इमोशंस, एंड वी हैव टू फाइंड आउट। ये सीखते सीखते शैलेश हमें ये याद रखना है कि पॉजिटिव इमोशंस जो है वो हमें किस तरह बेनिफिशियल है और कौन सी चीज़ में मुझे अच्छा लगता है, मुझे पॉजिटिव फील होता है, और कौन सी चीज़ मेरे लिए पेन क्रिएट करती है। ये सीखना है। हम लोग सिस्टमेटिकली ये सीखते नहीं हैं। हमें पता होता है कि प्यार, स्नेह, करुणा अच्छी चीज़ है, मगर हम उसको ज़्यादा दिमाग में याद नहीं रखते। हमें पता है कि नेगेटिव इमोशंस लाइक घृणा, क्रोध, कंपैरिजन, घमंड, ईर्ष्या, ये सब नेगेटिव इमोशंस है और इट क्रिएट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन माई बॉडी, ऑन माई माइंड, ऑन माई इमोशनल वेलबींग। बट हम ये भूल जाते हैं क्योंकि हमने हमारे माइंड को प्रशिक्षित नहीं किया है। हमारे माइंड को प्रशिक्षित करने के लिए जैसे जैसे हम ये पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इसके लिए हमें जागरूकता चाहिए, एक अवेयरनेस चाहिए, और ये अवेयरनेस एक स्वस्थ व्यक्ति बनाता है। डॉक्टर कटलर पूछते हैं दलाई लामा जी को कि आपके हिसाब से एक स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा क्या है? हम एक स्वस्थ व्यक्ति किसे कहेंगे? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्दी मैन इज वन who has got a complete physical, mental, emotional, social and spiritual well-being. ये 5 कंपोनेंट है, फिजिकल भी, मेंटल भी, इमोशनल भी, सोशल भी और स्पिरिचुअल भी। अभी अगर हम सोचेंगे तो हम इसमें से ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं कुछ वीक होंगे, मगर दलाई लामा सिंपल कहते हैं, एक दयालु आदमी स्वस्थ है, एक स्नेह सबर इंसान स्वस्थ है, और एक इंसान जिसके दिल में करुणा है वो स्वस्थ है। देयर इज नो नीड टू गो टू द डेफिनेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सीन सिंपल वर्ड्स। अगर आपको किसी दुखी को देख के दया आती है, आप स्वस्थ हैं। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ होती है फिर भी आप करुणावश ऐसा कहते हैं कि इनकी जैसी सोच, मैं उनके साथ उनके जैसा व्यवहार क्यों करूं, तो वो एक स्वस्थ आदमी है। और हमारे दैनिक जीवन में इसका हमें प्रयोग करना चाहिए। मानसिक अनुशासन इसके लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर कटलर कहते हैं कि सिर्फ सकारात्मक इमोशंस से, भावनाओं से विकसित करने से अगर हमें खुशी मिलती है तो ये तो सिंपल चीज़ है। माधवी बेन, डॉक्टर कटलर इज अ वेरी हार्ड इंटरव्यूअर। उनको पूछते हैं कि ये तो सिंपल चीज़ है कि भाई सकारात्मक इमोशंस और सकारात्मक भाव डेवलप करो और आप सुखी हो जाओ, फिर भी दुनिया में इतने सारे लोग दुखी क्यों हैं? दलाई लामा कहते हैं कि आप मानते हैं इतना मानसिक अनुशासन इजी नहीं है, आप मानते हैं इतना इजी नहीं है, दृष्टिकोण में बदलाव लाना भी इजी नहीं है। अगर एक आदमी नेगेटिव एटीट्यूड वाला है तो उनकी सोच में सकारात्मकता लाना कोई इजी चीज़ नहीं है, ये हमें स्वीकारना चाहिए। हमारा ब्रेन, मानव मस्तिष्क एक न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम की एक जो उसकी लाक्षणिकता है वो है। और न्यूरोप्लास्टिसिटी साइंटिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट लोग क्या कहते हैं कि अगर हम सीखते जाएं, अगर हम कोई चीज़, नई चीज़ बार बार करें तो आवर ब्रेन कैन एडप्ट टू एनीथिंग, सो वी कैन लर्न एनीथिंग एट एनी एज, एट एनी टाइम।
हम कुछ भी सीख सकते हैं। अनुशासित मन खुशी देता है। अ डिसिप्लिन माइंड विल गिव यू हैप्पीनेस। और अनुशासनहीन मन हमें कष्ट देता है। हमारे दिमाग में एक ऐसा प्रश्न आ सकता है कि खुशी अगर हमारे हृदय में छुपी है। हम कहते हैं, मैंने पहले ही कहा कि दलाई लामा कहते हैं कि खुशी भीतर है, बाहर नहीं है। खुशी इज अ भीतरी थिंग, हैप्पीनेस इज अ अंदर की ये बात है। तो इसके लिए प्रशिक्षण की क्या जरूरत, इसके लिए अध्ययन की क्या जरूरत, इसके लिए ध्यान और धारणा की क्या जरूरत, हमें ये सब क्यों करना चाहिए? परम पावन दलाई लामा जी कहते हैं कि आप नौकरी के लिए प्रशिक्षण लेते हैं, आप व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण लेते हैं। अगर दुनियावी चीज़ों के लिए आपको इतना प्रशिक्षित होना पड़ता है तो खुशी हमारा भीतरी खजाना है। खुशी हमारा भीतरी खजाना है, इतनी आसानी से वो नहीं मिलता। यू हैव टू ट्रेन योर माइंड। आपके मन को हर बार आपको याद दिलाना पड़ेगा कि मुझे पॉजिटिव इमोशंस में रहना है और पॉजिटिव इमोशंस मेरे लिए लाभकारी है और ये चीज़ों से, प्यार से, करुणा से ये मुझे मिल सकता है। और मुझे ये भी याद रखना है, हम चतुर होने के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो हमें ये नहीं सिखाती कि स्नेह कैसे करते हैं, दया का भाव कैसे उत्पन्न करते हैं, करुणा कैसे आपके जीवन में पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगी। इसके बारे में हमारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस नहीं सिखाती है। तो परम पावन दलाई लामा जी कहते हैं, खुश रहने के लिए ही हम जन्मे हैं। और स्पष्ट बात है कि दया और करुणा उसका विकास करने से हम खुश रह सकते हैं। चैप्टर 5 में हमारे पास कितना वक्त है? 15 मिनट। ओके। सो चैप्टर 5 में संबंध की वास्तविक संबंध हमारी वास्तविक संपत्ति है। रिलेशनशिप विथ आवर ओन सेल्फ, विथ आवर फैमिली, विथ आवर सोसाइटी, विथ आवर रिलीजन, विथ आवर स्पिरिचुअलिटी, विथ आवर गॉड, दिस यूनिवर्स, सबके साथ संबंध जो है वो हमारा कैसा है। हम सब कुछ पा लेते हैं, पैसे, संपत्ति, सम्मान, लेकिन कठिन समय में हमें एक ऐसा प्लेस चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके पास जाके हम हमारा दिल खोल सके, हमारी मन की सभी बात उनको कह सके, हमें वहां पे कुछ साबित नहीं करना पड़े। तो खुश रहने के लिए हमें एक अच्छा नाता, एक अच्छी दोस्ती, एक आत्मीय संबंध हमारे पास होना चाहिए। हमारे जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जहाँ पे धन, संपत्ति और पद कोई मायने नहीं रखता। सच्ची दोस्ती धन, संपत्ति या पद से प्रभावित कभी नहीं होती। स्नेह और करुणा के माध्यम से, अगर हम स्नेह और करुणा के माध्यम का उपयोग करें तो हम अजनबी के साथ भी एक अच्छा घनिष्ठ आत्मीय संबंध विकसित कर सकते हैं। और करुणा के मूल्य को तो दलाई लामा जी ने हर बार इतना उल्लेख किया है कि कभी कभी हम ऐसा मानते हैं कि पहले मैं खुश हो जाऊं और फिर और दूसरों की खुशी के लिए काम करूंगा, और वो हम कभी खुश हो ही नहीं पाते और दूसरों की खुशी के लिए हमारा कोई प्रयास भी नहीं होता। सो हमें किसी को मदद करके, प्रशंसा करके, परेशान या दुखी व्यक्ति को थोड़ा सा सुन के खुशी हम महसूस कर सकते हैं। सच्ची करुणा इस तर्क पर आधारित है कि सभी मनुष्य मेरे जैसे ही है। सभी मनुष्य मेरे जैसे ही है। जो हमारे साथ अग्री नहीं करते हैं वह भी, जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते वह भी मेरे जैसे ही है। और मैं खुशी पाना चाहता हूं तो वो भी खुशी पाना चाहता है। मैं कष्ट को कम करना चाहता हूं या कष्ट से बचना चाहता हूं तो दूसरे व्यक्ति भी कष्ट से बचना चाहते हैं, कष्ट को कम करना चाहते हैं।
अगर खुशी पाना हमारा अधिकार है तो खुशी पाना उनका भी अधिकार है। हमें उसे भी ध्यान में रखना चाहिए। कष्ट का रूपांतरण, कष्ट तो जीवन में आएगा ही। कष्ट के बिना का जीवन तो कभी हो ही नहीं सकता। तो हम हर पल खुश कैसे रह सकते हैं? हर पल खुश रह ही नहीं सकते, क्योंकि पीड़ा का अनुभव हमें खुश नहीं रहने देता, हमारी खुशी छीन लेता है। तो गौतम बुद्ध के पास साथ का किस्सा गोमती का एक जो इंसिडेंस है, उसमें एक स्टोरी आती है कि गौतम बुद्ध के पास एक स्त्री जाती है और वो कहती है कि मेरा बेटा, मेरा पुत्र का देहांत हो गया है, आप उसे जिंदा कर दो। सब लोग कहते हैं कि आपके पास ऐसा कुछ है कि आप उसको जिंदा कर देंगे। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि हाँ, मैं कर दूंगा, मगर आपको ये बात करनी पड़ेगी, एक मेरा काम करना पड़ेगा कि आप ये पूरे गांव में घूम के आओ और कुछ वो जो सरसों का बीज लेके आओ, एक मुट्ठी सरसों का बीज या चावल का दाना या ऐसा कुछ कहा होगा। तो वो स्त्री दौड़ती है, हर घर पे जाती है, मगर गौतम बुद्ध ने एक शर्त रखी थी कि जिनके घर में आज तक एक भी डेथ नहीं हुआ हो, ऐसे घर से ये लाना है। वो स्त्री जाती है, हम सब जानते हैं ये स्टोरी, मगर ये स्टोरी से वो जो किस्सा गोमती थी, उनको बुद्ध भगवान का ये संदेश था, एक उनके लिए एक लर्निंग देनी थी कि मृत्यु यूनिवर्सल ट्रूथ है, सब लोगों के पास वो आती ही है। इसी तरह पीड़ा, सफरिंग जीवन का एक अभिन्न अंग है, उसको आप नकार नहीं सकते। यू कैन नॉट जस्ट अवॉइड इट, आपको उसका सामना ही करना पड़ेगा। और अगर हमारे जीवन में कष्ट आता है तो उसका रूपांतरण हम कैसे करें? तो रूपांतरण करने के लिए कहते हैं कि कष्ट मुझे क्या सिखाता है, असफलता मुझे क्या सिखाती है। मैं सफल होता हूं तो मैं खुश हो जाता हूं, मगर मैं असफल हो जाता हूं तो मैं नाखुश होता हूं, मेरी खुशी चली जाती है। दुख से भी मेरी खुशी चली जाती है। कोई मेरी प्रशंसा करता है, मैं खुश होता हूं, मगर कोई मुझे क्रिटिसाइज करता है तो मैं नाखुश हो जाता हूं। मगर प्रश्न को हमें बदलना चाहिए। जब हमारे पे पीड़ा आती है, असफलता आती है, तो हम पूछते हैं कि भगवान मैं ही क्यों, मेरी जिंदगी में क्या, मैंने क्या ऐसा किया था कि मुझे ये दुख दिया। मगर हमें सवाल को अलग से पूछना चाहिए अपने आप को कि ये पीड़ा, ये सफरिंग मुझे क्या सिखाती है, मुझे क्या सिखाती है, कुछ सिखाना चाहती है। असफलता हमें सिखाती है कड़ी मेहनत और धैर्य, बीमारी हमें सिखाती है स्वास्थ्य का मूल्य, एंड आलोचना हमें सिखाती है सेल्फ क्रिटिसाइजिंग मी, आई मस्ट इवेल्युएट माई सेल्फ। और हार्ड टाइम, हमारा जो कठिन समय है, वो हमें सिखाता है कि हमारी एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या होती है, कैसे मैं इस पीड़ा को, कैसे मैं इस मुसीबत को, कैसे मैं इस कठिन वक्त को ओवरकम करूं, एंड आई बिकम अ विनर। दुख, बुद्ध के 4 आर्य सत्य है, बुद्ध के 4 आर्य सत्य है। नंबर 1 दुख है। क्या क्या दुख है? आप बोलेंगे मेरे साथ, दुख है। जोर से बोलिए, दुख है। दुख का कारण है, जोर से बोलिए, दुख का कारण है। दुख से मुक्त होने की संभावना है। और दुख के 3 मूलभूत कारण है। दुख के, बोलिए आप, 3 मूलभूत कारण है। एक है इग्नोरेंस, अज्ञान, दूसरा है डिससेटिस्फेक्शन, तृष्णा, और तीसरा है घृणा, हेट्रेड, नफरत। ये 3 चीजें हमारे दुख का कारण बनती है। अज्ञान क्या है कि दुख हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, उसको हम नकार नहीं सकते, उसका सामना करना ही पड़ता है। कोई भी हो, राजा हो, रंक हो, स्पिरिचुअल गुरु हो या लेबरर हो, सबके जीवन में दुख आता ही है।
ये जो घमंड है, घृणा है, तृष्णा है और अज्ञान है, हमारे मस्तिष्क के 3 जहर है। इट इज अ विष, इट्स अ पॉइजन। और दलाई लामा जी कहते हैं कि ये पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करने के लिए हमें माइंड को प्रशिक्षित करना पड़ता है, और माइंड के प्रशिक्षण की एक विधि होती है जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं। फ्रेंड्स, कुछ पीड़ा वास्तविक होती है, मगर कुछ पीड़ा सेल्फ क्रिएटेड होती है। हम खुद ગુજરાતીમાં એને પેટ ચોડીને ઊભું કરેલું દુઃખ કહેવાય। ગુજરાતીમાં એને શું કહેવાય? પેટ ચોડીને ઊભું કરેલું દુઃખ। કેવું? પેલાની પાસે આ છે, મારી પાસે ઓછું છે એટલે દુઃખી છું। પેલાની હાઇટ સરસ છે ને મારી હાઇટ ઓછી છે એટલે હું દુઃખી છું। પેલાનો કલર ફેર છે ને મારો કલર ડાર્ક છે એટલે હું દુઃખી છું। ધીસ આર ઓલ, વોટ ઇઝ ધીસ? This is absolutely useless to think about. How can we become unhappy with such petty things? Friends, हमें अपना दुख क्रिएट नहीं करना चाहिए। हम दुखी तब भी होते हैं जब हम चेंज को रेजिस्ट कर सकते हैं। ये दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ परमानेंट है। There is only one thing that is permanent, and that is change. That is change. बदलाव के अलावा सभी चीज बदलाव है। सो हमें दृष्टिकोण में बदलाव लाना पड़ेगा। आई वुड गो लिटिल फास्ट। आई वॉज वॉर्न्ड बाय माई फैमिली दैट यू मस्ट कीप योर स्पीड फास्ट सो दैट वॉट एवर मटेरियल यू हैव गॉट यू कैन डिलीवर इन टोटो, बट आई विल कीप द टाइम लिमिट एंड आई वुड जस्ट ट्राई टू फिनिश इट फास्ट विद इन 10 minutes. इज इट ओके फॉर ऑल? 10 minutes आई विल टेक। बट फ्रेंड्स, दृष्टिकोण में बदलाव के लिए एक स्टोरी इसमें कही गई है, दलाई लामा जी ने कही है कि यूनान का एक संत था और उनका एक शिष्य था। उस शिष्य को एथेंस में कोई साधना के लिए, कुछ शिक्षा पाने के लिए जाना था। तो उसके पहले उनके गुरु ने, प्रशांत भाई, उनको कहा कि आप एक काम करो, 3 साल तक जो आपको गाली दे उनको आपको पैसे देना है। जो आपको गाली दे उनको आपको पैसे देना है। 3 साल खत्म हुए, गाली देने वाले को वो पैसे देते रहे, और 3 साल खत्म होने के बाद वो गुरु ने कहा कि नाउ यू आर फिट फॉर गोइंग टू एथेंस फॉर अचीविंग योर नॉलेज। वो जैसे भी एथेंस के प्रवेश द्वार में प्रवेश करता है तो वहाँ पे एक संत बैठे होते हैं जो उसका बहुत बुरी तरह इंसल्ट करते हैं, गाली देते हैं और उनको अपमानित करते हैं। इतना अपमानित होने के बावजूद वो जो शिष्य था, यूनान से गया था, वो हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। और जब वो संत ने देखा कि यार ये आदमी का मैं इंसल्ट कर रहा हूँ, इसको गाली दे रहा हूँ, अपमानित कर रहा हूँ, फिर भी वो इतना हंस कैसे सकता है, उनको पूछा कि तू क्यों हंसता है? प्रसन्न भाई जवाब था उनका, वहाँ पे मैं इसके लिए सबको पैसे देता था और ये आप बिना पैसे कर रहे हैं, बिना पैसे करे। मैं कितना खुशनसीब हूँ कि बिना पैसे मुझे गाली मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमें कभी कभी क्रोध आता है, गुस्सा आता है। सब लोगों को गुस्सा आता है, यस और नो? किन किन लोगों को गुस्सा बहुत आता है? चलो मैं ऐसा सवाल पूछता हूँ, किन किन लोगों को गुस्सा नहीं आता है? अंगुली ऊपर करो। अरे गुस्सा तो सबको आता है। हमारा गुस्सा प्रदर्शित करने का जो स्टाइल है वो अलग होता है, वरना गुस्सा सबको आता है। और जब गुस्सा आता है तो हम आधे पागल हो जाते हैं। हम पागल होने के बाद क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ पता नहीं चलता, और कुछ समय के बाद हमें लगता है कि अरे यार इसको टाल सकते थे, आई वुड हैव अवॉइडेड दिस। मगर हम ये चूक जाते हैं और हम हमारी खुशी को गंवा देते हैं। एंगर को कैसे रोकना है, बहुत बड़ी विधि को उन्होंने बताई है। मगर मार्टिन ल्यूथर किंग का एक कोट उसमें कोट हुआ है जिसमें कहते हैं, जो चीज़ मुझे नष्ट नहीं कर सकती, जो अच्छी तरह सुनना,
ध्यान से सुनना, इसमें बहुत बारीक मैसेज है। मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर कहते हैं, जो चीज मुझे नष्ट नहीं कर सकती वह चीज मुझे मजबूत बनाती है। वह चीज मुझे मजबूत बनाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मेरे पे कुछ ऐसा आ जाता है कि जिससे मेरी नष्ट होने की संभावना है, मगर मैं नष्ट नहीं हुआ, तो मैं उससे कुछ न कुछ सीखता हूं। फ्रेंड्स, कटलर बहुत हार्ड इंटरव्यूअर है। वो कहते हैं, आखिरी सवाल, खुश रहने के लिए आप तो भिक्षु हैं, आप अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं। हम तो संसारी हैं, हमारे पास इतना अध्ययन का वक्त कहाँ है? हमारे पास तो, हम आपके जैसा, आप तो भिक्षु है, संत है, साधु पुरुष है। तो दलाई लामा कहते हैं कि देखो, बदलाव की शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी। लर्निंग, डिसाइडिंग, डिटर्मिनेशन, डिटरमाइनिंग, प्रॉम्प्ट एक्शन, कंसिस्टेंट एक्शन, विल पावर और डू इट नाउ एटीट्यूड, ये सब इजीली थोड़ा होगा। आपको वो उसके लिए वक्त निकालना पड़ेगा। आपकी प्रायोरिटीज आपको बदलनी पड़ेगी। अगर आपको कोई बीमारी होती है तो उसके लिए आप वक्त निकालते हैं या नहीं निकालते? अगर आपको कुछ बीमारी होती है तब बीमारी से ठीक होने के लिए दवाई करते हैं या नहीं करते हैं? अगर आपको हार्ट का कोई प्रॉब्लम है तो आप एक्सरसाइज, डाइटिंग करते हैं या नहीं करते हैं? तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जो हमारा भीतरी खजाना है उसको पाने के लिए आप वक्त नहीं निकाल सकते? आपको वक्त निकालना चाहिए, आपकी प्रायोरिटी चेंज करनी चाहिए। खुश रहने की कला में आखिरी जो चैप्टर है वो आध्यात्मिक चिंतन है। आध्यात्मिक चिंतन, वो आध्यात्मिक चिंतन में दलाई लामा कहते हैं कि मेरे लिए अध्यात्म की परिभाषा यह है कि आप आस्थावान हो या नास्तिक, आप भगवान में मानते हो या नहीं मानते हो, अगर आप में मूलभूत मानवीय गुण है, आप में मूलभूत मानवीय गुण है, जैसे कि करुणा, दया, क्षमाशीलता, धैर्य और सहनशीलता, अगर आप आपके जीवन में, दैनिक जीवन में ये भावों का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो मैं मानता हूं कि आप स्पिरिचुअल है। इसमें यह भी पूछा जाता है कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में क्या फ़र्क है। बहुत कुछ बातें इसमें लिखी हैं, मगर मैं अब चाहता हूं कि 3 मिनट के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद 3 मिनट में मैं मेरा सेशन कंक्लूड करूंगा। आप आराम से बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, आंखें सबको बंद करनी है। एक लंबी सांस अंदर और बाहर, एक लंबी सांस अंदर और बाहर। रिलैक्स योरसेल्फ, कंटिन्यू डीप ब्रीदिंग। धीरे से आप श्वास लेते रहिए और सोचिए, रिकलेक्ट इन योर लाइफ, गो टू द बैक मेमोरी एंड रिमेंबर अ पर्सन जिसने आपको कभी आपके कठिन समय में हेल्प की हो, आपको सुना हो, आपको अप्रिशिएट किया हो। उनका फेस आपके सामने लाइए, करुणा से उनकी ओर देखिए और कहिए, मन ही मन में कहिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Now, remember 3 things for which you are grateful in your life. कुछ भी, family,
health, friends, universe, God. Just remember it and tell that I am extremely thankful. Now ask last question to yourself. क्या भगवान ने मुझे ऐसी स्थिति में रखा है कि मैं किसी के जीवन में खुशी जोड़ सकूं, आनंद जोड़ सकूं? जस्ट थिंक, रिलैक्स. ग्रेटिट्यूड हमारे मन को कमी से समृद्धि की ओर ले जाता है. धीरे से लंबी सांस लीजिए और एक लंबी सांस लीजिए और एक लंबी सांस लीजिए. विथ अ स्माइलिंग फेस, प्लीज ओपन योर आईज. प्लीज ओपन योर आईज. फ्रेंड्स, दलाई लामा जी और डॉक्टर कटलर का यह पुस्तक आनंद का सरल मार्ग, प्रसन्न रहकर जीवन जीने की कला, बहुत कुछ सिखाती है हमें खुशी पाने के लिए. इफ आई समराइज दिस बुक in simple 7 words, word number 1 is accept. Accept those conditions which I cannot change or it is not controllable by me. Accept it. प्रयास, जो भी मैं बदल सकता हूं उसको बदलने में मैं पूरी ताकत लगा दूं. I will put my 100% to change the things. उसके लिए मैं कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा. क्षमा, किसी ने भी अगर मेरा बुरा किया है माफ कर दूंगा मैं उसे. पुरानी कुछ यादें हैं, पुराने कुछ ग्रजीज हैं, मैं उसको माफ कर दूंगा. माफी उनके लिए नहीं, माफी मेरे लिए है. मैं मेरी द्वेष की भावना से मुक्त हो जाऊंगा. हमारा दिल बहुत हल्का हो जाएगा. करुणा, कंपेशन. कंपेशन यानी हमारी खुशी में किसी और की खुशी को भी शामिल करना. कंपेशन मीन्स किसी और की भावनाओं को समझना और वो समझ के जितना हो सके उसे मदद करना. कृतज्ञता. ग्रेटिट्यूड. ग्रेटिट्यूड हमें सब कुछ देती है जो आपको चाहिए. परम कृपालु परमात्मा हमें ये सब तब देते हैं जब उन्होंने जो दिया है उसके लिए हम उसका ग्रेटिट्यूड अदा करें. संबंध. वी शुड नॉट जस्ट डेवलप कॉन्टैक्ट्स. फेसबुक में मेरे इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, इंस्टा पे मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, व्हाट्सएप में मेरे इतने कॉन्टैक्ट्स हैं. कॉन्टैक्ट्स नहीं, लवफुल कनेक्शन, आत्मीयता, स्नेह का संबंध क्रिएट करें. और मन का प्रशिक्षण. हम हमारे मन को हर रोज कुछ खुराक दें, कुछ एक्सरसाइज कराएं ताकि वो पॉजिटिव इमोशंस, मन की जो पॉजिटिव मेंटल स्टेट है उसको हर वक्त सजा के रखें, संभल के रखें. इस पुस्तक का संदेश के केंद्र में रखते हुए मैं आप सबको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मान लो हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ, पैसा, पद, संपत्ति, ऐश्वर्य, गाड़ी, बंगला, मगर कुछ ऐसा है जो हमें चैन से सोने नहीं देता है. हमारा मन अशांत है, हम हर वक्त कुछ कमी महसूस करती हैं. क्या ऐसी समृद्धि को हम सब समृद्धि मानेंगे? मेरे हिसाब से शायद नहीं. हमारे पास ये नहीं है और उसके बाद हमारे पास साधारण जीवन लेकिन मन शांत है, परिवार का प्यार है, दूसरों के प्रति करुणा है, मन में सेवा का भाव है, जो मिला है उसके लिए कृतज्ञता है. तो क्या वह जीवन छोटा होगा?
Of course not. We must feel satisfied with whatever we have, and we must try to contribute positively in somebody's life. और वही आनंद का सरल मार्ग है. The Art of Happiness, a handbook for life or living life, happy life. I suggest that everybody should read this book. इंग्लिश हिंदी जो भी कन्वीनियंट है, मगर 3 घंटे के यानी 1 घंटे में 300 पेजेस समाना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था. फिर भी मैंने कोशिश की, मैंने प्रयास किया कि इस पुस्तक में दी गई सब चीज़ों का मैं थोड़ा थोड़ा आपको रसास्वाद कराऊं. ये पुस्तक की प्रिपरेशन मैंने जब शुरू की तो मेरे हिसाब से अगर मैं 1 घंटे में 30 पेजेस पढ़ सकता हूँ तो 10 घंटा एक बार लगा. और इसके पीछे मैंने लिखा है कि सेकंड रीडिंग कंप्लीटेड ऑन 9th अगस्त, थर्ड रीडिंग कंप्लीटेड ऑन 15th अगस्त, फोर्थ रीडिंग कंप्लीटेड ऑन 21st अगस्त. और आज सुबह में 5 बजे उठ के 2 बजे तक 2:30 बजे तक मैंने इसकी तैयारी की, जिसमें मैंने मेरी स्क्रिप्ट लिखी. तो फ्रेंड्स, आई होप आई मस्ट हैव गिवन जस्टिस टू द ऑथर एज वेल एज ट्रांसलेटर in sharing the views of the author. There is nothing from my side. Everything is written in black and white in this book. फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. सयाजी वैभव लाइब्रेरी के पदाधिकारी अध्यक्ष प्रशांत भाई, सचिव माधवी बेन, कन्वीनर कीर्तिदा बेन और सभी वडीलगण, मेरे प्रोफेसर डॉक्टर जनक पारेख सर, सबको मैं आप बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. बहुत बहुत आभार. ડૉક્ટર અમૃતભાઈ, થેન્ક યુ. આપણે થેન્ક યુ કહ્યું, આપણે બધા વતી થેન્ક યુ. અને હું તમને પૂછું, એમને પ્રશ્ન પૂછ્યા. આજે વિદ્યાર્થી બનવાની મજા પડી ને, કારણ કે પ્રશ્ન પૂછતા હતા ને એ અને મેં તમને બરાબર 1 કલાક કહ્યું હતું ને, તમે 6 વિશે શરૂ કરેલું ને 7 વિશે જ પૂરું કર્યું છે. આપણે આજે થોડુંક 10 મિનિટ લેટ શરૂ કર્યું હતું. તમે તમારી રીતે બિલકુલ વેરી વેલ સ્ક્રિપ્ટેડ, પેલું પિંક બી બધું હાઇલાઇટ પણ હતું, આપણને દેખાતું. વેરી વેલ સ્ક્રિપ્ટેડ. આપણે ખૂબ સુંદર રજૂઆત કરી છે. 5-1 મિનિટ છે આપણી પાસે, પણ હું પહેલાં થોડી જાહેરાત આપને કરી લઉં. ખૂબ સરસ શ્રોતાગણ. પ્રશાંતભાઈ, અનાવિલવાડીમાં ચાતુર્માસ થાય, હિન્દીમાં જ એ લેક્ચર અપાતા. હું માધવીબેન ખૂબ નાની, આપ તો ત્યાંથી આવ્યા છો પણ ખબર હશે બરાબર. એ સ્ટાઇલનું આપણે આજે હિન્દીમાં જ એ સાંભળ્યું. અનાવિલવાડીમાં એ ચાતુર્માસમાં બહુ સરસ લેક્ચર થતા. તો આજે આપણો શ્રાવણ માસ એ રીતે અહીંયા બહુ સરસ રીતે થયો છે, એનો ખૂબ ખૂબ આનંદ છે. અને બધાને લાગુ પડતી એવી વાતો છે. બધું પોતાની સામેથી બધું પસાર થયું હશે, આપણું જીવન પસાર થયું હશે. આપણે બીજું કશું નથી કરતા, સુખી થવા દુઃખી થઈએ છીએ, બીજું કશું જ નથી. સુખી થવા આપણે સૌ દુઃખી થઈ રહ્યા છે, એ આ પુસ્તકનો સાર કહી શકાય. કાલનો 2 જાહેરાત પછી 5-1 મિનિટ એમની સાથે જે વાત કરવી હોય તે કરો. આપના જે કંઈક પ્રશ્નો હોય, 5-10 મિનિટ મોડું થશે તો વાંધો નથી, બધી આપણે માટે જ વાતો છે. કાલે સહવાચન પ્રવૃત્તિ લાઇબ્રેરીમાં એ થશે જ. આવતો શનિવાર 5મો શનિવાર છે, એટલે આપણો મને ગમતું પુસ્તક નહીં રહેશે, પણ નેક્સ્ટ સપ્ટેમ્બરના પહેલા શનિવારે 5મી સપ્ટેમ્બર આવે છે, એટલે શિક્ષક દિન છે. અને તે સમયે સુરતથી જ એક યુવા શિક્ષિકા આવી રહ્યા છે, કશ્વી જડિયા, અને ખૂબ સુંદર ડેડ પોએટ્સ સોસાયટી એ પુસ્તક પર અહીંયાથી એ વાર્તાલાપ આપશે. તો આપ સૌ આવજો. યુવાનો બહુ જ સરસ બોલે છે અને ખૂબ સરસ પુસ્તકો વાંચે છે તેની. પણ 5 સપ્ટેમ્બર પહેલાં કંઈક અમે આપને માટે લાવી રહ્યા છીએ. આપણે સૌ સાથે કૃષ્ણાર્પણમ કરીશું. એટલે કે જન્માષ્ટમીની પૂર્વ સંધ્યા હોય કે પર્વના પૂર્વ દિવસોમાં 2-3 દિવસ આગળ 2 સપ્ટેમ્બરે રાત્રે 8:30 થી 10:30 અહીંયા કૃષ્ણાર્પણમનો પ્રોગ્રામ આપણે ગયા વર્ષે બી રાખ્યો હતો. પણ અમે સયાજી વૈભવ લાઇબ્રેરીના પરિવારના 4 સભ્યો અહીંયાથી કંઈક જુદા જુદા દૃષ્ટિકોણથી કૃષ્ણને રજૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ.
પોસ્ટરમાં એ 4 વ્યક્તિઓ આપની સામે આવશે. કહી દઉં માધવીબેન, એમાં કંઈ હા રવા દઈએ. હા, તો પુસ્તકાલયનો પરિવાર છે એટલે આપ સૌમાંના જ બધા હશે, પણ ખૂબ મજા આવશે. એટલે પણ રાતના 8:30 એટલે મસ્ત તમારું વાળું કરીને આવો અને મજા કરીશું એની. અને એ કૃષ્ણાર્પણના પ્રોગ્રામમાં સૌને અમારું ખાસ આમંત્રણ છે. એટલે 2 સપ્ટેમ્બર, 5મી સપ્ટેમ્બર અને દર રવિવારનું આપણું સહવાચન પ્રવૃત્તિ. થોડું ચોમાસું છે એટલે અહીંયા, અધરવાઇઝ અટલ બિહારી વાજપેયી ગાર્ડનમાં રહી છે, પણ કાલે અહીંયા જ એમાં મળીશું. થોડુંક આપણે લેટ શરૂ કર્યું છે, તો આપ સૌને માટે ડૉક્ટર અમૃતભાઈ સાથે કંઈક પૂછવું કરવું હોય તો મંચ આપ સૌને માટે ખુલ્લો મૂકું છું. માર્ગ તો આપના સૌને સરળ મળ્યો જ છે આપણને. નાની નાની વાતો પણ રોજ જ અહીંથી બહાર નીકળીશું ને જ શરૂ થઈ જાય એવી વાતો છે આ બધી. તો પ્રશ્નોત્તરી હોય, પૂરક ચર્ચા હોય. હાજી ડૉક્ટર સાહેબ. હા, I was pretty puzzled when you stated that happiness is the state of mind. Because I was thinking that it is not just merely a state of mind, it's something else, something much deeper. But as you passed through the pages, ultimately you came down to the 7 qualities of the life, which was much, much beyond the state of mind. And the real root cause of our happiness is not merely remain the state of mind, but much bigger than that. So, to start with, I was a bit puzzled that only the state of mind, which is the ever-changing place. State of mind is the ever-changing place. How one can be satisfied and be happy with the state of mind. But when you proceeded, you said that you have to train on your mind. You have to pass through the difficulties, and the difficulties will train. So, ultimately, you guided us in the very deep place. And something that was beyond the state of mind. And that is the real root of the happiness. And so I became happy at the last. Otherwise I was a bit puzzled because now we are talking just superficial. Not. Ultimately you related to the 7 qualities of life, which is the real root cause of the happiness. Thank you, sir. આપણે જાણે ડૉક્ટર અજીતભાઈ સોની નવસારીના ખૂબ જાણીતા જનરલ પ્રેક્ટિશનર છે. અને આજે અમારા ઓડિયન્સમાં 3 અંજુબેન હમણાં જ બહાર નીકળ્યા, બધા ડૉક્ટર્સ પણ હાજર છે, એનો ખૂબ આનંદ છે. બીજા કોઈને કંઈક પણ કહેવું હોય, પ્રશ્ન હોય. સૌપ્રથમ તો અદ્ભુત વાર્તા માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે તમે બધા ખુશી છો, કીધું છે છીએ, બધા ખુશી છીએ. પછી મને એવું પૂછ્યું કે દરેક પરિસ્થિતિમાં ખુશી રહી શકે તેવા વ્યક્તિને આપણા માટે ક્લેપ કરો. એટલે કેટલાક સિદ્ધાંતો મેં રાખ્યા છે મારા પોતાના માટે કે હું પોતે એવું માનું છું કે અસંખ્ય લોકો મને પ્રેમ કરે છે, એવી પ્રતિતિ મને ઉમેશ માટે ખુશ રાખે છે. આ એક મારું સૌપ્રથમ વ્યક્ત કરે છે. બીજું કે દરેક પરિસ્થિતિમાં હું ખુશ રહેવાનો પ્રયત્ન કરું છું, ખુશ રહેવા માટે સજ્જ થાઉં છું, એટલે જ બધી પરિસ્થિતિઓ મને ખુશ રાખવા માટે પ્રયત્ન કરે છે. આ એક મારો બીજો સિદ્ધાંત છે. એ તમે કીધું કે માય માઇન્ડ કેન બી ટ્રેન ટુ લીવ હેપી. એ પણ એક સાથે આગળ કરેલું છે. ને પછી બીજો એક છે ને, એક આપણે ઘણા વખત પહેલા વાંચ્યું હતું, કઈ બુકમાં વાંચ્યું છે અત્યારે મને યાદ નથી, પણ એક નાવ હિયર એન્ડ નો વેર. હા, આ એક કોન્સેપ્ટ છે. કોઈ પણ પરિસ્થિતિ સામે આવી જાય તો પૂછું કે ભાઈ આમાં નાવ હિયર રાખવાનું છે કે નો વેર રાખવાનું છે. એટલે નો વેર પર રાખવાનું છે કે નાવ હિયર પર રાખવાનું છે, એ નક્કી કરી નાખે એટલે આપણે ખુશ થઈએ. બીજું તમે મેડિટેશનની વાત કરી છે, તો મેડિટેશનમાં કેવું છે કે મેં નથિંગ બોક્સ રાખ્યું છે. નથિંગ બોક્સ એવું કે જે દિવસ દરમિયાન જેટલી કોઈ ઘટનાઓ બની હોય તેમાં પોઝિટિવ હોય, નેગેટિવ હોય ને એટલે ત્યાં નથિંગ બોક્સમાં ડ્રોપ કરે. આપણી પાસે પોઝિટિવ એ જ રીતે એ બધી વસ્તુઓ જે છે તે મને કોન્સ્ટન્ટ ખુશ રાખે. ફરી આપનો આભાર. હા.
પ્રશ્નો કે એવું ના હોય તો કન્ક્લુડ કરીએ. પ્રશાંતભાઈ આપ બોલશો. અમરતભાઈ નમસ્કાર. ઘણા દિવસે ખુશીથી હા ખુશીનો વાતાવરણ કે સમુદ્ર મંથન થયું ને એમાંથી અમૃત નીકળ્યા અને આજે ખુશી બેસી. આ ખુશી છે. આવી રીતે કોઈનામાંથી સારું જાણીને ખુશ થવું, ખુશ કરવા, એટલે ખરેખર હું એવું માનું કે જ્યારે તમે બીજાને ખુશ જોતા શીખો ને એ સૌથી મોટી ખુશી છે. ખૂબ આનંદ આવ્યો. ભલે મોડું થયું પણ આજે મોડું નથી થયું પણ ખુશીનો અવસર મળ્યો. વાહ ભાઈ વાહ. તો માધીબેન હાજી. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને આભાર અમારા આમંત્રણનો સ્વીકાર કર્યો. પુસ્તક ખૂબ સરસ સિલેક્ટ કર્યું, પણ એક વાચક એટલો સરસ વક્તા તરીકે જ્યારે પુસ્તકની પ્રસ્તુતિ કરે છે અને આખા પુસ્તકનો સાર એટલે જીવનનો સાર જ છે. એ ટૂંકમાં આપણે જે રીતે અમને બતાવ્યો એ તો અદ્ભુત રહ્યું જ, પણ છેલ્લી 3 મિનિટની જે એક્સરસાઇઝ હતી ને એ આખા વાર્તાલાપનો એમાં કવર થઈ ગયું હતું. કેમ કે એ જે 3 પ્રશ્નો હતા ને ફ્રેક્શન ઓફ સેકન્ડમાં જે વિચાર આવતો હતો ને કે થેન્ક યુ કોણે કેવું છે, કોણે કેવું છે, તો એ સમગ્ર વાર્તાલાપની છાપ એ 3 મિનિટની એક્સરસાઇઝમાંથી મળી. અને બીજું કે એના પછીનું જે કન્ક્લુડ આપણે કર્યું હતું તે પણ ખૂબ અદ્ભુત રહ્યું છે. એટલે ખુશી એ 7 પદોમાં જ છે. કદાચ આપણે કહીએ કે અષ્ટાંગ યોગ જે એક સ્ટેપ તમે આગળ જાઓ છો તેવી રીતે આ ખુશીની બધી ચરણસીમા પર પહોંચવાના રસ્તા હતા એમ આપણે ચોક્કસ કહી શકીએ. અને આખા વાર્તામાં બધું જ સરસ હતું, પણ મને જે છેલ્લું એક વાક્ય સ્પર્શી ગયું તે મને કહેવાનો આનંદ થશે કે જો ચીજ આપકો નષ્ટ નહીં કરી सकती वो आपको मजबूत बना देती है. એ મને ખૂબ ગમ્યું. વેરી ગુડ. તો આ એક સુંદર નોટ સાથે ફરી પાછા 2 સપ્ટેમ્બરે મળીએ, 5મીએ મળીએ. પુસ્તકો માટે તો આવતા જ રહેજો, મળતા જ રહીશું. તમે પણ પુસ્તકો લેવા આવો, અમે પણ લેવા આવીએ, એ રીતે મળતા રહીશું. પુસ્તક પ્રેમીઓ છીએ એટલે મળતા રહીશું. અમૃતભાઈ ફરી પાછા આવજો જ આવજો. દીકરા તને બી ભવિષ્ય માટે ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા. અને અમારે પુસ્તકનું જ્યારે આપવાની વાત થઈ ને ત્યારે બહુ સુંદર બીજું પુસ્તક પસંદ કરેલું, પણ પૂછવું પડ્યું. 6500 પુસ્તક જેના ઘરમાં હોય એને પૂછવું પડે કે આ રિપીટ તો નથી થતું ને ભાઈ. અને તે ખરેખર રિપીટ થયું જ. અમને એમ હતું કે અમે જરા વિશિષ્ટ પુસ્તક, પછી એમણે અમને જે કહ્યું એ પણ છે જ એમની પાસે, પણ તે અંગ્રેજી વર્ઝન છે. એટલે કે મને આ ગુજરાતી આપો એમ કરીને અમે આ એમના પુસ્તકની પસંદગી એમના પર જ છોડી છે. તેવા સુંદર વાચક ફરી પાછા મળીશું જ એવા શુભાશય સાથે સૌને શુભરાત્રિ. મળીએ.